Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. If I am audible to you clearly, please write yes in the comment box so that I can start. I hope I am audible to you clearly. Today we are going to see the another chapter. Whatever is important part for your GPAT Niper Drug Inspector Pharmacist exam. So from the your anatomy physiology, and that is nothing but the tissue. So we are going to see about the tissue. That is very important for your upcoming GPAT Niper Drug Inspector and Pharmacist exam. So this will be the fourth demo lecture for our upcoming target GPAT Niper 25-26 batch. जो हमारा टारगेट जीपैट नाइपर 25-26 बैच है या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम है, उसके लिए अभी दिस विल बी अ फोर्थ डेमो लेक्चर, राइट? दिस विल बी अ फोर्थ डेमो लेक्चर. So we are going to see the tissues. So in the first session we have seen the cell, the content of cell, the components of cell, what do you mean by cell, plasma, what do you mean by cell membrane, what do you mean by cytoplasm, what are the different cytoplasmic organelle we have already seen. We have seen the cell division, mitosis and meiosis. After that we have seen the introduction of HAP yesterday, and today we are going to see the next part, that is nothing but the tissues, right? So tissue means what? Tissue means क्या होता है कि tissue means it is nothing but the collection of cell to perform a particular type of function. So particular type of function, so some cells will come together to perform a particular type of function known as a tissue. So tissue is nothing but the collection of cell to perform a particular type of function. But they will not ask you the definition. जैसे सेल के बारे में बोला था, they will not ask you definition, but definitely in the cell they will ask you what is the function of endoplasmic reticulum, what is the function of cytoskeleton, what is the function of centromer, what is the function of, right? So mitotic spindle, like that, microtubule, what is the function of microtubule. Such kind of questions they have to ask from cell. सेल में से वो कंपोनेंट के हर एक कंपोनेंट का रोल क्या है, कि जैसे सेंट्रोमर है, सेंट्रोमर का रोल क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियोलस. तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क, है ना. दे विल आस्क यू ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक लाइन में ही पूछेंगे कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आपको ऑप्शन में देंगे. आई विल आल्सो टेक एमसीक्यूज ऑन दैट, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर एमसीक्यूज आल्सो. तो वो अनटिल एंड अनलेस आपको अगर सेल मालूम नहीं है, सेल के कंपोनेंट्स मालूम नहीं है, सेल डिवीजन मालूम नहीं है, सेल डिवीजन मालूम नहीं है, माइटोसिस मालूम नहीं, मायोसिस मालूम नहीं, तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एंटी कैंसर ड्रग. दैट्स व्हाई अभी सेल अपन पहले ले रहे हैं, उसके बाद में टिश्यू, उसके बाद में एंटी कैंसर ड्रग्स, राइट? तो टिश्यू, व्हाट इज मीन बाय टिश्यू? टिश्यू इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सेल. इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन, है ना. टिश्यू मतलब क्या है? देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ in a human body. There is a different level of organization at a cellular level, at a tissue level, at a organ level, at a system level, at a, we have seen in the yesterday's lecture कि particular type of, है ना, जो items होते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन. तो these four atoms constitute a molecule. आइटम से बनेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनेगा सेल, सेल से बनता है ऑर्गन, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा सिस्टम, सिस्टम से बनता है आपका पूरा बॉडी. तो सिस्टम, सो पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ सेल व्हेन दे कम टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन, सिमिलर फंक्शन कैरी करने के लिए कुछ सेल साथ में आते हैं, उनको बोलते हैं टिश्यू. ठीक है, तो दैट इज नोन एज टिश्यू. टिश्यू इज द कलेक्शन ऑफ सेल फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन. तो बेसिकली
we are not going to go in the details of history and all that, and okay, but what are the major 4 types of tissue? Tissue के कितने type होते हैं? There are more major 4 types of tissue. So they are also subdivided into their type. जैसे है ना, हर एक टाइप का subdivision भी होता है. So tissue is nothing but the collection of cell for a particular type of function, and there are 4 major type of tissue. ठीक है, 4 major type होते हैं. फर्स्ट कौन सा होता है भाई? तो फर्स्ट इज epithelial tissue. Epithelial tissue, right? Epithelial tissue is also known as epithelium, right? Then second type होता है connective tissue. फर्स्ट टाइप होता है epithelial tissue mostly present in the surface. Okay? Second होता है connective tissue, and third one is nothing but the muscle tissue. Third one is nothing but the muscle tissue. Fourth one is nothing but the nervous tissue. So basically, tissues are nothing but the collection of cell to perform a particular type of function, and there are 4 major tissues in your body. 4 टाइप होते हैं मेजर. फर्स्ट होता है epithelial tissue और also known as epithelium. Second one is a connective tissue. Third one होता है muscle tissue. Fourth one is a nervous tissue, right? So you can also see their in short. So you can say this one is known as a connective tissue, right? This one is a epithelial tissue, right? And muscle tissue, you have different muscle cells known as a myocytes. So muscle में भी 2 टाइप का आता है. In muscle also you have 2 types, smooth muscle and skeletal muscles. So we are going to see in detail. Then last type होता है nervous tissue. So nervous tissue, that is a nervous cells, they are comprising nervous tissue, and it is in the nervous system, right? So we'll see one by one. So basically first one is the epithelial tissue. तो पहले epithelial tissue आएगा आपका. So I hope I am audible to you. Yes. सरोज नायक, वैष्णवी, करोले, आरती दवाई, ठीक है. So epithelial tissue, first one is the epithelial tissue, right? Tissues are of 4 type principally: epithelial tissue, connective tissue, muscle and nervous, right? So out of that epithelial tissue, so it is mostly found in the covering of body. Epithelial tissue जो होता है epithelial tissue, so it is mostly found in the covering of body. और what is the role of epithelial tissue? Covering of body or lining of body cavities. Linings of body cavity, मतलब जो भी कैविटी है उसके लाइनिंग में कौन से सेल्स होंगे? epithelial cells का टिश्यू होगा, राइट? तो लाइनिंग ऑफ कैविटी, hollow lining of hollow organs, and then tubes also. tubes मतलब जैसे फॉलिपियन ट्यूब है आपका, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, या फिर आपका एलिमेंट्री कैनाल है. तो इन दैट ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सो देयर यू विल हैव epithelial tissue on the surface, है ना? तो epithelial tissue का काम क्या होता है? मोस्टली फाउंड इन द कवरिंग ऑफ बॉडीज, then lining of cavities, then hollow organs, lining of cavities, hollow organs, tubes, and also glands. Some epithelial cells also found in the glands. So epithelial tissue is a nothing but the collection of cells, है ना? Collection of cell for particular function. So mostly epithelial tissue is found on the covering of cell, lining of cavity, है ना? Hollow organs, then tubes, and then lastly glands, right? So there are mostly 4 tissues: connective tissue, epithelial tissue, muscle tissue, and nervous tissue, right? तो इसमें सब टाइप्स भी होता है. we'll see it one by one. So I hope I am audible to you, right? So what is the function of this epithelial tissue? तो epithelial tissue का function क्या होता है? So what is the function of this epithelial tissue? Because ये basic part है, and nobody used to take this. No GPAT classes is going to explain you this. What is cell? What are the types of tissue? Because they think उनको लगता है कि ये GPAT में आएगा नहीं. But I am damn sure lot of questions, if you see the previous year's paper, questions are there from this part also. If you see the drug inspector paper, if you see the pharmacist exam papers, इसमें से questions आते ही आते. So what is the function of epithelial tissue? तो mostly ये जो first type होता है epithelial tissue, ये कहाँ पे होता है? Mostly found as a covering of body, linings of cavities, hollow organs, tubes, and glands. So what is the major function? So mostly they are protective in nature. इसका function होता है protection. So they will protect the underlying structure. जैसे अगर epithelial tissue का आप होता है coverings में होता है, जैसे covering of cavity. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका नजल कैविटी में जो कवरिंग है वो epithelial tissue का है, तो वहाँ पे उसका फंक्शन क्या होगा? तो प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइन स्ट्रक्चर. उसके नीचे जो भी स्ट्रक्चर है, उसके नीचे जो भी टिश्यू है, उसके नीचे जो भी ऑर्गन है, तो यू हैव टू, सो दिस epithelial tissue will protect the underlying structure from dehydration, chemical or mechanical damage, जैसे है ना,
कोई केमिकल डैमेज हो सकता है या मैकेनिकल डैमेज होता है। जैसे आपका स्किन है, स्किन इज एपिथेलियल टिश्यू है ना, स्किन के नीचे क्या है, ऑर्गन्स है, स्किन के नीचे क्या है, एडिपोज टिश्यू है, स्किन के नीचे मसल है, स्किन के नीचे बोन्स है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्किन? सो प्रोटेक्ट द अंडरलाइन स्ट्रक्चर एंड आल्सो प्रिवेंट द इट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। तो है ना, तो वाटर लॉस नहीं होना चाहिए। अगेन स्किन विल प्रिवेंट द अंडरलाइन ऑर्गन फ्रॉम द डैमेज लाइक मैकेनिकल और केमिकल डैमेज है ना। उसके बाद में आता है आपका also epithelial cells as a functions of secretion, absorption है ना, absorption and secretion। absorption function कहाँ पे होता है इसका? तो whatever epithelial cells are or epithelial tissue lining of epithelial cells are there in a intestine। intestine में क्या है, epithelial cell का lining है intestine में, that's why in intestine so what is the function? absorptive function। so epithelial tissue has a absorptive function also, it has a secretion function also। so whatever epithelial cells इसमें glands में भी होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है glands, तो also found in the glands। so in the gland epithelial tissue act as a secretion। so secretion is a function of epithelial tissue in the glands, right? so it will prevent a underlying structure from mechanical damage, chemical damage, it will prevent the dehydration, it will protect also as a secretory function, also as an absorption function। and in the epithelial tissue what is that? a closely packed cells है ना by the matrix। matrix मतलब क्या होता है कि it is a basement or it is a structure between two cells है ना। बहुत सारे cells एक support के ऊपर होते हैं and that support is known as a matrix or basement membrane which is the inner tissue from the epithelial cells only। तो जो भी इपिथेलियल टिश्यू होता है मतलब कलेक्शन ऑफ इपिथेलियल सेल, तो वो कैसे रहेगा, कलेक्शन कहाँ पे रहेगा, वो यूनाइट कहाँ पे होंगे? सो दे विल कलेक्टेड एट अ वन साइड ऑन अ मैट्रिक्स। सो व्हाट इज दैट मैट्रिक्स? दैट इज आल्सो फ्रॉम द इपिथेलियल सेल्स एंड इपिथेलियल सेल्स दे विल come together, they will live on a matrix of basement membrane। okay, so that is a epithelial tissue, right? now we'll see the next part। तो epithelial tissue का functions क्या है? it has a secretory function, also it has a protective function, also it will prevent the dehydration of underlying tissue, also it has a absorption function। तो epithelial linings होते हैं आपके intestine में, that is responsible for the absorption, and epithelial cells from your glands, they are responsible for the secretion, right? so now epithelial tissues, they are classified into different type। तो सबसे पहले क्या है, टिश्यू के 4 टाइप होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, नर्वस, मसल। इपिथेलियल टिश्यू में भी टाइप होता है। इपिथेलियल टिश्यू आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप और इपिथेलियल सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। तो इपिथेलियल टिश्यू में भी आइदर सिंपल इपिथेलियम, epithelial tissue may be either simple epithelium or stratified epithelium। simple epithelium or stratified epithelium। simple epithelium क्या होता है? simple epithelial tissue में there is a single line of epithelial cell, there is a single layer of epithelial cell, single layer of epithelial cell is present in the simple epithelium। simple epithelium में single layer होगा यहाँ पे, and stratified epithelium means so there is a multi-layer, okay, so there is a multiple layer of epithelial cells। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम है ना, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम में क्या होगा, मल्टीपल लेयर्स होंगे एपिथेलियल सेल के। सिंपल इपिथेलियम में क्या रहेगा, देयर इज ओनली वन लेयर, सिंगल लेयर, ओके, वन लेयर ऑफ इपिथेलियम। यहाँ पे एक लेयर होगा इपिथेलियम का। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम में मल्टीपल लेयर्स में, राइट। so there are 2 type of epithelial tissue, that is one is a simple epithelium and second one is a stratified epithelium, right। अभी देखो, so in the simple epithelial tissue also you have different types। in the simple में कितने टाइप के देखो, in the simple you have squamous epithelium, then you have cuboidal epithelium, you have columnar epithelium। so there are 3 types of simple epithelium, है ना। तो simple epithelium में भी 3 टाइप होता है। there are 3 types of simple epithelium। so in the simple epithelium, squamous epithelium, then cuboidal epithelium and columnar epithelium, they are the type of simple epithelial tissue। तो epithelial tissue is a type of tissue, है ना। और epithelium में भी 2 टाइप होता है, मेनली simple epithelium and stratified epithelium।
तो सिंपल इपिथेलियम भी कितना टाइप होता है, 3 टाइप। तो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम, कॉलमनार इपिथेलियम, दे आर द टाइप ऑफ सिंपल इपिथेलियम। तो वैसे स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम के टाइप होते हैं। सो देयर इज अ type of stratified epithelium also, right? So what are the type of stratified epithelium? So stratified squamous epithelium, in that also there are two, keratinized and non-keratinized, and है ना, तो epithelial tissue याद रखना है आपको, right? Stratified squamous epithelium which may be either keratinized और non-keratinized, मतलब जो मल्टी लेयर इपिथेलियल टिश्यू है स्ट्रेटिफाइड, उसमें 2 टाइप होता है कि स्क्वामस इपिथेलियम एंड दूसरा एक होता है तो स्क्वामस में भी केराटिनाइज्ड होता है, नॉन केराटिनाइज्ड मतलब केराटिन कंटेनिंग सेल, जैसे आपका स्किन सेल है तो स्किन सेल, देन योर हेयर सेल, देन योर नेल सेल, तो ये क्या है, इट इज अ इपिथेलियल सेल्स, बट इन दैट इपिथेलियल सेल्स जो सुपरफिशियल लेयर जो है वो दैट इज अ केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड मतलब क्या है, सो देयर इज अ लॉस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दैट सेल एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन नोन एज अ केराटिन। तो केराटिनाइज्ड मतलब केराटिन हैविंग सेल, keratin having tissue. Keratinized epithelium मतलब क्या? So in the epithelial cell there is a multi-layer epithelial cell known as a stratified, and there is a superficial layer is a of a keratin, protein containing keratin. So keratinized and non-keratinized मतलब जिसमें keratin नहीं है, right? So then again there is one more known as a transitional epithelium. Okay? So याद रखना है simple epithelium they are classified into squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, right? Then stratified they are classified into stratified squamous epithelium, and in a stratified epithelium के 2 major type है, stratified squamous and transitional epithelium. So in the stratified squamous epithelium you have keratinized, either keratinized cell or non keratinized cell, okay? And transitional epithelium आता है, again they are of है ना, they are also type of epithelial stratified epithelium. So you can see over here, तो यहाँ पे देखो we'll see the simple epithelium. Now simple epithelium और simple epithelial tissue, simple epithelium और simple epithelial tissue they has a 3 types, इसमें 3 टाइप होते हैं, कौन से squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium. ये हो गया फर्स्ट टाइप squamous epithelium, second cuboidal epithelium and third one is a columnar epithelium. So we'll see in a short the description, क्योंकि इसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन बुक में दिया है, बट दिस इज नॉट योर सेमिस्टर लेक्चर, दिस इज GPAT लेक्चर एंड वट एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर GPAT Niper DI Pharmacist that I am going to discuss here, right? So squamous epithelium and squamous is okay. Simple epithelium has 3 types. फर्स्ट आता है उसमें squamous epithelium. Squamous epithelial cells are also known as a pavement, okay? Pavement epithelial cells. Remember it is a synonym, pavement epithelial cell. Squamous epithelial cells also known as pavement epithelial cells, and इसमें क्या होता है दोस्तों, simple epithelium and in that you have 3 types. The first type is nothing but the squamous epithelium. Squamous epithelium is nothing but the a single layer of flattened cell. यहाँ पे क्या है कि in this kind of tissue, in this kind of in this epithelial tissue you will have a single layer. यहाँ पे क्या होगा, single layer of a flattened cell, फ्लैट सेल रहेंगे, यू कैन सी हियर है ना, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटन सेल, यहाँ पे फ्लैट सेल है, यहाँ पे सब फ्लैट सेल है देखो, एंड इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटन सेल एंड सेल्स दे फिट, ओके, सेल्स फिट क्लोजली, दे आर है ना, देखो यहाँ पे एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सिंगल सेल, दे आर फिटेड टाइटली, यहाँ पे एक बैग क्लोजली पैक रहे, दे आर पैक्ड क्लोजली, सो सेल्स फिट क्लोजली लाइक अ फ्लैट स्टोन, जैसे पत्थर होता है ना एक में के पूरा, जैसे आपका फर्श है, फर्श ना, जैसे आपका स्टाइल होता है फ्लोर का, दे आर फिटेड क्लोजली लाइक अ फ्लैट स्टोन फॉर्मिंग ए स्मूथ मेम्ब्रेन, वो एक स्मूथ मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं एंड दैट मेम्ब्रेन हैज अ डिफ्यूजन कैपेसिटी, तो मेम्ब्रेन हैज अ डिफ्यूजन कैपेसिटी एंड कैन डिफ्यूज इजीली। तो स्क्वैमस इपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है, so squamous epithelium will be in a, they will form a lining of heart, lungs and nephron. तो हार्ट का जो लाइनिंग है, इनर लेयर ऑफ हार्ट known as a endocardium, endocardium is made from a squamous epithelium, है ना, lungs, alveolar lining of lung, squamous epithelium, nephron, किडनी में जो नेफ्रॉन होता है,
है ना. So that is also, there is a lining of heart, that is a through a simple squamous epithelium, lungs and nephron. तो ये लाइनिंग ऑफ हार्ट, लंग्स एंड नेफ्रॉन, तो हार्ट में पाया जाएगा, लंग्स में पाया जाएगा, नेफ्रॉन में पाया जाएगा. कौन? स्क्वामस इपिथेलियम. इट इज अ सिंगल लेयर फ्लैटेंड सेल. ये क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन. जैसे आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में क्या होता है? सो देयर इज अ रीएब्सॉर्प्शन एंड देयर इज अ एक्सक्रीशन. तो नेफ्रॉन जो होता है वहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन होता है, वहाँ पे एक्सक्रीशन होता है. किसका? वाटर का एंड सॉल्ट्स का. तो इफ दैट नेफ्रॉन सेल है ना, नेफ्रॉन में इपिथेलियल सेल्स है नेफ्रॉन में, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन. अगर वहाँ पे स्क्वेमस इपिथेलियम नहीं होते तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ डिफ्यूजन ओवर देयर. So that's why, so squamous epithelial cells are found in the linings of your heart, linings of your nephron, linings of your lungs. तो alveoli में क्या होता है? alveoli. तो lungs मतलब क्या? alveoli. So in the alveoli there is a diffusion of gases. तो वहाँ पे diffusion किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, right? तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, they are diffused across the your alveoli. तो alveoli is made from a squamous epithelium. ठीक है, वहाँ पे squamous epithelium का lining होता है, and that's why, so in the alveoli there is a diffusion of oxygen and carbon dioxide is possible. In the nephron diffusion of salt and water is possible due to squamous epithelium. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. नेक्स्ट टाइप होता है cuboidal epithelium. So there is a next type known as a cuboidal epithelium. So in this क्यूबाइडल इपिथेलियम में क्या है? एज द नेम इंडिकेट, इसका नाम में रखा है क्यूबाइडल. तो यू विल हैव क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, क्यूब लाइक सेल्स, राइट? क्यूबाइडल इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम. तो इन दिस क्यूब शेप्ड सेल्स दे आर फिटेड क्लोजली ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, क्यूब लाइक सेल होंगे, है ना. यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे देखो क्यूबाइडल इपिथेलियम. आई होप आई एम ऑडिबल यू क्लियरली साउंड आ रहा है आपका? आपको क्लियरली साउंड आ रहा है? क्यूब शेप्ड सेल्स दे आर फिटेड क्लोजली ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड cuboidal epithelium they are having role in the secretion, absorption and excretion. ये तीन चीजें है कि cuboidal epithelium करते हैं. So cuboidal epithelial tissue is involved in the secretion of something or absorption of something or excretion of something. So in the tubules of kidney and glands, so cuboidal epithelium they are found in the kidney and glands. तो किडनी के सेल्स, किडनी है उसमें cuboidal epithelium मिलेगा आपको. ग्लैंड्स जो होते हैं वहाँ पे cuboidal epithelium मिलेगा. तो cuboidal epithelium is found in the kidney and glands, right? So that is involved in the secretion, absorption, excretion of something. So in the tubules. So in a very short I am teaching you. यहाँ पे पूरा cuboidal epithelium का रोल पूरा डिटेल में नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है GPAT Niper के लिए, they can ask you like this. So that's why which cells are involved in the secretion as well as absorption as well as excretion and found in the tubules of kidney and glands. So what type of epithelium? So you have to answer cuboidal epithelium, right? So there are three types of epithelial cells: squamous epithelium, cuboidal epithelium, and third one is nothing but the columnar epithelium. So columnar epithelium में क्या रहेगा? Columnar epithelium you will have a single layer of rectangular shaped cell. यहाँ पे rectangular shaped cell. So we will have a rectangular shaped cells over here. Rectangular shaped cell on the basement membrane without surface structure. Line, okay. So such kind of columnar epithelium. Columnar epithelium कहाँ पे होता है? Columnar epithelium is found in the, found in the lining of stomach. Lining of stomach, intestine, है ना. Now cuboidal, okay. Now columnar epithelium may be either single. Columnar epithelium may be either single or with the surface structure. Columnar epithelium cells they may be either as a single cells or okay, maybe either alone or maybe having some surface structure. Columnar epithelium जहाँ पे होता है वो ऐसे सिंपली columnar epithelial cells का लेयर रह सकता है, या फिर वहाँ पे columnar epithelial cell
विद द सरफेस स्ट्रक्चर, उसके सरफेस के ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है. नाउ कोलिमिनर एपिथेलियम मे बी आइदर एज अ अलोन एज अ सिंगल लेयर और मे बी आइदर विद द सरफेस स्ट्रक्चर. तो सरफेस स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, उसके सरफेस स्ट्रक्चर में, सरफेस स्ट्रक्चर में रहता है विलाय माइक्रोविलाय, है ना, जैसे विलाय माइक्रोविलाय. तो इन द इंटेस्टाइन देयर इज अ माइक्रोविलाय. माइक्रोविलाय इंटेस्टाइन में होता है. माइक्रोविलाय इज नथिंग बट द टाइनी प्रोजेक्शन व्हिच इज अ फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग, एंड दैट माइक्रोविलाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, है ना, माइक्रोविलाय रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया क्यों बढ़ता है, माइक्रोविलाय जैसे स्ट्रक्चर वहां पे होता है, राइट, माइक्रोविलाय स्ट्रक्चर, राइट, एंड दैट्स व्हाई. Okay, so columnar epithelium may be either a without any surface structure or with the surface structure, like microvilli in the trachea. Okay, ciliated epithelium may be either ciliated epithelium may be ciliated in the trachea. जो ट्रकिया होता है आपका, जो विंड पाइप होता है, वहां पे क्या रहेगा, कोलिमिनर एपिथेलियम कैसे रहेंगे, सिलिएटेड. सिलिएटेड मतलब क्या, इसके ऊपर ऐसे, सिलिएटेड मतलब क्या, उसके ऊपर ऐसे हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन रहेंगे, यहाँ पे हेयर्स रहेंगे इसके ऊपर. सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब क्या, यहाँ पे हेयर्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे एक हेयर, एक सेल के ऊपर एक हेयर, एक सेल के ऊपर एक हेयर. तो सिलिएटेड एपिथेलियम मींस ए एपिथेलियल, ओके. सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम मींस ए कोलुमनर एपिथेलियल सेल हैविंग सिलिया लाइनिंग. सिलिएटेड एपिथेलियम का आप पे होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन द ट्रकिया, and also ciliated epithelium or ciliated columnar epithelium will also contain some globulate cell. globulate cell का एक काम होता है, globulate cell has a one role to secrete the mucus. तो globulate cell क्या करते हैं, mucus रिलीज करते हैं, mucus. globulate cell will release mucus and will prevent the any foreign substance entering in the your respiratory tract, है ना. so columnar epithelium cell is found in the trachea में होता है columnar epithelial cell. And what is the role? Role is nothing but the simple to expel the mucus out of the trachea. ये क्या करेंगे, expel the mucus out of the trachea, क्योंकि इसके ऊपर क्या रहेंगे, ciliated epithelial cell रहेंगे, ciliated columnar epithelial के ऊपर hairs रहेंगे, hairs. जैसे आपका फॉलिपियन ट्यूब होता है, फॉलिपियन ट्यूब में क्या है, तो it has a some ciliated epithelial cell. तो ciliated epithelial cell होने की वजह से जो फॉलिपियन ट्यूब है उसमें ओहम जो रिलीज होता है ओवरी से, वो ओहम ओवरी से बाहर आ जाता है और फॉलिपियन ट्यूब उसको यूट्रस में लेके आती है, राइट. सो ड्यू टू सिलिएटेड एपिथेलियम. ओके, सो देयर आर मेजर 3 टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. फर्स्ट वन इज अ स्क्वैमस एपिथेलियम, एंड सेकंड वन इज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड थर्ड वन इज अ कोलुमनर एपिथेलियम. ठीक है, याद है, कोलुमनर एपिथेलियम, नंबर याद रखना. तो वेयर दे आर प्रेजेंट सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना. यहाँ पे देखो स्क्वैमस एपिथेलियम इट इज फाउंड इन द हार्ट, लंग्स एंड नेफ्रॉन. क्यूबॉइडल एपिथेलियम फाउंड इन द किडनी एंड ग्लैंड्स, ओके. एंड देन कोलुमनर एपिथेलियम इज फाउंड इन द स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ योर ट्रकिया. तो आई होप यू आर गेटिंग माय वॉइस क्लियरली. साउंड आ रहा है, अनुष्का, आरती, वैष्णवी, साउंड आ रहा है प्रॉपर रोज. तो ये टाइप्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स के. सिंपल एपिथेलियम सेल्स देयर आर 3 टाइप, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनर. ठीक है, नाउ विल सी द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, विल सी द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम देखो, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मींस क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या है, तो देयर आर डिफरेंट लेयर्स. स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में क्या है, सेवरल लेयर्स. तो देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ cell, several layers of cell, various there might be various type of cells, several layers of cell, and shape उसका अलग अलग हो सकता है, various cell. So cells having several layer, having various type of shape. So what is the main role of stratified epithelium? Stratified epithelium का main role क्या होता है, to protect the underlying structure, to protect the underlying structure. तो first type अपने देखा है ना, first type देखा है अपने simple epithelial cells, simple epithelial tissue, and second type is a stratified epithelium. तो stratified मतलब क्या है, यहाँ पे several layers of cell रहेंगे and they might be of a various shapes. उसका शेप अलग अलग रहेगा. तो it is mainly used to protect the underlying structure. मेन काम का है उसका, मेन काम का है जैसा
टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइन स्ट्रक्चर, है ना। एंड यहाँ पे अलग अलग लेयर है ना, लेयर 1, लेयर 2, लेयर। सो लोएस्ट लेयर जो है, सबसे नीचे वाला लेयर जो है, उसको बोलते हैं अपन बेसमेंट लेयर, और है ना लोअर लेयर और बेसमेंट लेयर। सो इन दैट लेयर देयर इज अ कंटिन्यूअस माइटोसिस, वहाँ पे कंटिन्यूअस माइटोसिस होता है। जैसे आपका स्किन है, स्किन में लेयर्स होते हैं, जैसे एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, है ना। तो एंडोडर्मिस में जो है ना, वहाँ पे देयर इज अ कंटिन्यूअस माइटोसिस। तो अपर लेयर है वो पे, वहाँ पे क्या है कि देयर इज अ कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ योर स्किन। स्किन जो है आपका वो कंटिन्यूअस डिजनरेट होते रहता है। स्किन में क्या है कि अपर ऊपर वाला जो लेयर है वो कंटिन्यूअस डैमेज होते रहता है। देयर इज अ रिमूवल ऑफ अपर एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन कंटिन्यूअसली ड्यू टू, जैसे आपने रबिंग किया, जैसे नहाए आपने, घिस स्किन आपने वो रब किया, तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है। क्यों, कहाँ से? बिकॉज बिलो नीचे वाला जो लेयर होता है वहाँ पे कंटिन्यूअस माइटोसिस चलता है। So there is a continuous mitosis in the lower layer of your epithelial cell. So stratified epithelium means several layers of epithelial cells and they may vary in the shape. Okay. So stratified epithelium में आपने देखा है there are two types. So in the stratified epithelium there are two types. First one is nothing but the first one क्या है? First one is a stratified squamous epithelium. Stratified squamous epithelium. Stratified में भी क्या है? दो टाइप के होते हैं, stratified squamous epithelium, and इसमें भी क्या है? many layers, they consist of many layers of cell and deep layer as a columnar. तो deepest layer होता है stratified squamous epithelium का, सबसे नीचे वाला लेयर जो है वो क्या होता है? columnar epithelial cells से होता है। columnar epithelial cells are present in the deepest layer of your stratified squamous epithelium, and जब ये बढ़ता है, जैसे लास्ट वाला लेयर से ऊपर वाला, when as they grow towards the surface, now the cells may change from columnar to flattened cell जब लास्ट लेयर जो होता है वो columnar होता है ना, बट आपका जो उसके बाद का लेयर जो सरफेस का लेयर है उसमें अलग अलग शेप के सेल रहेंगे। now when this deep layer will grow, so it will continuously replace the above layer and then cell will become a फ्लैट टाइप के सेल बनेंगे, फ्लैटन एंड देन शेड, तो इसका कलर भी आएगा, राइट। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में फर्स्ट टाइप है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें दो टाइप आता है, इसमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस में भी क्या आता है? दो टाइप, एक आता है केराटिनाइज्ड, एक होता है नॉन केराटिनाइज्ड। तो एक केराटिनाइज्ड होता है, एक नॉन केराटिनाइज्ड। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम देयर आर टू टाइप, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड मतलब क्या है? केराटानाइज्ड, केराटिन का है, केराटिन क्या है? केराटिन इज नथिंग बट द प्रोटीन, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल हैविंग केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड, है ना, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्या है? सरफेस लेयर ऑफ डेड एपिथेलियम। इसमें क्या है? सरफेस लेयर ऑफ डेड एपिथेलियम, सरफेस के ऊपर डेड एपिथेलियल का लेयर रहेगा। सरफेस विल हैव डेड एपिथेलियम एंड न्यूक्लियस फ्रॉम दैट एपिथेलियल सेल्स आर लॉस्ट एंड देयर इज अ प्रोटीन इन द स्ट्रक्चर नोन एज केराटिन। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ keratinized stratified epithelium. They will form a tough and waterproof layer. तो keratinized epithelium क्या है? tough layer बनता है and waterproof layer बनता है, prevent the drying of cell underneath, उसके नीचे जो सेल्स है उसका ड्राइंग प्रिवेंट करता है ये, एंड इट विल फॉर्म अ सरफेस लेयर ऑफ स्किन। तो स्किन का लेयर क्या है आपका? केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। आपका जो स्किन है दैट इज अ केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, आपको याद रखना है ये, राइट। एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे याद रखना है आपको। I hope I am audible to you clearly and you are able to see the screen. स्क्रीन दिख रहा है आपको? I am audible है आपको? मैं audible हूँ आपको? Yes or no? Then सेकंड होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या होता है? स्टेशन मतलब क्या? लाइनिंग। स्ट्रैटिफाइड स्टेशन मतलब लाइनिंग। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में दो टाइप का आता है। फर्स्ट वन इज केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल
एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड आता है नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। तो नॉन केराटिनाइज्ड इज फाउंड इन द कंजक्टिवा, लाइनिंग द कंजक्टिवा ऑफ आइज। कंजक्टिवा जो होता है आपका कंजक्टिवा, आइज के, आइज का जो एपिथेलियल, आइज का जो लेयर है, मतलब आपका जो आईबॉल है, आईबॉल के वो कंजक्टिवा है, उसमें क्या है, लेयर है। कंजक्टिवाइटिस मतलब क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ योर कंजक्टिवा, है ना। तो कंजक्टिवा वहाँ पे वही है, कौन है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, बट दे आर नॉन केराटिनाइज्ड, वहाँ पे केराटिन नहीं। तो लाइनिंग्स ऑफ योर कंजक्टिवा ऑफ आई, देन लाइनिंग्स ऑफ माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, लाइनिंग ऑफ वजाइना, तो ऑल दे कंसिस्ट ऑफ non-keratinized stratified squamous epithelial cells, right? And what is the role of these cells, non-keratinized squamous epithelium? They will prevent the moist surfaces. नीचे वाला surface है उसके, उसमें moisture है, जैसे आपका conjunctiva, it is continuously lubricated by the tears, जैसे vagina में continuously lubricated with the Bartholin glands. So to prevent the dryness, to prevent the evaporation of that moisture, so they will prevent the drying out of these structures. Non-keratinized stratified squamous epithelium, right? Non-keratinized stratified squamous epithelium, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टाइप होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, पहला टाइप होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, उसमें दो टाइप है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में दूसरा टाइप होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या, सेवरल लेयर, सिंपल मतलब क्या, सिंगल लेयर, सिंगल एपिथेलियल टिश्यू मतलब सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब भैया मल्टी लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो स्ट्रेटिफाइड में ये आता है, स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, उसमें दो टाइप, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड, एंड दूसरा होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो इन द ट्रांजिशनल एपिथेलियम देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ पियर शेप्ड, है ना, पियर शेप्ड सेल लाइनिंग, ओके, पियर शेप्ड सेल। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या है, सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप्ड सेल। नाउ ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स विल लाइनिंग करेगा किसको, सो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो इन दिस देयर आर क्वेश्चन वंस आई हैव ऑलरेडी सीन, है ना। जैसे आई डोंट रिमेंबर ड्रग इंस्पेक्टर में था या फिर फार्मासिस्ट में, बट था। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम विल हैव पियर शेप्ड सेल्स, they will cover, lining मतलब क्या, lining मतलब cover, तो they will lining मतलब क्या होता है, cover, they will cover the urinary bladder which allows the stretching of the bladder after filling। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स में some sort of stretching is there, some sort of elongation is there, elongation and है ना, elongation and again क्या बोलते हैं उसको, elongation is there, so known as a stretching, and again there is a origin will come to original place। मतलब जब आप एम्प्टी ब्लैडर होते हो तो आपका ब्लैडर छोटा होता है, और जब उसमें यूरिन फिलअप होता है तो आपका ब्लैडर का साइज बढ़ जाता है, राइट। बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम allows the bladder to be stretched, to change the shape, to elongate, to become a large in size। जब उसमें ब्लैडर में यूरिन आता है तो आपका ब्लैडर बढ़ जाता है ना, तो बढ़ता है, ब्लैडर का शेप बढ़ता है, साइज बढ़ता है। तो चेंज इन द शेप इज allotted because of the transitional epithelium। Several layers of pear shaped cells are there, they will cover your urinary bladder which allows the stretching of urinary bladder after filling। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन भर जाएगा तो उसका स्ट्रेचिंग होगा, उसका इलोंगेशन होगा, उसका शेप बढ़ जाएगा, राइट। यू कैन सी ओवर हियर द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब क्या है, सेवरल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल। देखो ये एक लेयर है आपका, यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे एक लेयर है, लास्ट में ये लेयर है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब क्या, देयर आर सेवरल लेयर्स, राइट। तो लास्ट का जो लेयर है, जो बेसमेंट लेयर है, दे आर फ्रॉम कॉलमनर सेल। तो जो बेसमेंट लेयर है, जो बेस लेयर है, वहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम सेल है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स रहेगा, कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। बाद में क्या है, इसका शेप चेंज होगा। तो एज दिस लेयर विल ग्रो,
देयर इज अ चेंज इन शेप ऑफ दिस कॉलमनार एपिथेलियम एंड लास्टली सेल का है ना, लास्टली स्क्वामस सेल रहेगा। दिस इज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर इसमें केराटिन है, अगर इसके ऊपर केराटिन है तो केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, अगर केराटिन नहीं है तो नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखो, लास्ट टाइप जो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये है ना। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है उसमें दो टाइप होता है, स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड सेकंड होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो स्क्वामस में भी दो टाइप का होता है, केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड, एंड लास्ट में क्या है, ट्रांजिशनल। तो ट्रांजिशनल टाइप ऑफ epithelial cell, ट्रांजिशनल epithelium cells are they are found in the bladder, urinary bladder। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें ये स्ट्रेटिफाइड है ना, वहाँ पे यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल epithelium cells रहेंगे। क्यों? बिकॉज दे अलाउज द चेंज इन द शेप, दे अलाउज द इलोंगेशन, दे अलाउज द इलोंगेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे साइज बढ़ता है, साइज कम होता है, बिकॉज व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज रिलैक्स्ड, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स है मतलब उसमें यूरिन नहीं है, तो सेल का साइज देखो यहाँ पे, दे आर हैविंग सम पियर शेप्ड सेल्स, यहाँ पियर शेप्ड सेल्स epithelial cells, बट व्हेन देयर इज अ फिलिंग ऑफ योर ब्लैडर, जब यूरिन ब्लैडर में है ना, तब वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, देयर इज अ स्ट्रेचिंग ऑफ दिस ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दैट्स व्हाई दिस इज अ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ऑप्शन पहले स्ट्रक्चर में क्या है, व्हेन ब्लैडर इज रिलैक्स्ड, सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है, व्हेन ब्लैडर इज फिल अप, मतलब ब्लैडर जब फुल ऑफ यूरिन है तब ये जो सेल्स है, ये जो टिश्यू है, कौन सा इपिथेलियल टिश्यू, कौन सा इपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। तो ये इसमें भी टाइप है, ये क्या है, ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द यूरिनरी ब्लैडर, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, चलो है ना। तो यहाँ पे देखो समरी ऑफ इपिथेलियल सेल्स, समरी ऑफ इपिथेलियल सेल्स, तो टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, और है ना, types of epithelial tissue, okay। So in a simple way देखो, how many types of epithelial tissue are there, simple epithelial tissue, then है ना, there are major two type, यहाँ पे दो टाइप होता है मेजर। कौन सा मेजर टाइप होता है भाई, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम है ना, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। इसमें क्या रहेगा, वन लेयर ऑफ फ्लैट काइंड ऑफ इपिथेलियल सेल्स। तो इसका लोकेशन कहाँ पे है, उसका फंक्शन क्या है, सो टाइप ऑफ टिश्यू, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन एंड देयर फंक्शन, ओके। तो राइट, तो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, so one layer of flat cell will be there and they are located and their function, so they are located at the alveoli। तो alveoli में लोकेशन हो मतलब लंग्स में alveoli। what is the function, so it has a diffusion function, it permits the exchange of gases, it is a diffusion function, right। so also found in the capillaries, location क्या है, capillaries, blood capillaries, to permit the exchange of material, okay। also found in the smooth, okay, smooth to prevent the abnormal clotting, also found in the cardiac lining, ये cardiac lining में होता है, क्यों, blood vessel के लाइन में, क्यों, because it provides a smooth layer which prevent the blood clotting, right। तो simple epithelium में कितना टाइप होता है भाई, simple epithelium में तो there is are है ना, simple epithelium में आपका है ना टाइप्स होता है, जैसे क्यूबाइडल है ना, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम का टाइप होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एंड कॉलमनर, क्यूबाइडल कॉलमनर, राइट। तो देखो यहाँ पे है ना, तो क्यूबाइडल मतलब क्या, देयर इज अ मोनो लेयर ऑफ सिंपल क्यूब शेप्ड सेल्स, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल। ये होता है आपकी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में। तो व्हाट इज द रोल, टू रिलीज द थायरोक्सिन। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन द सलिवरी ग्लैंड, सलिवरी ग्लैंड में होता है, क्या काम है उसका, टू रिलीज द सलिवा, बिकॉज दे हैव अ सिक्रेटरी फंक्शन, है ना, पहले इसमें देखा था, दे हैव अ सिक्रेटरी फंक्शन, राइट। दे विल प्रोटेक्ट द अंडरलाइन स्ट्रक्चर एंड दे हैज अ सिक्रेटरी फंक्शन। तो किडनी ट्यूबल्स में क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स, दे आर फाउंड इन द किडनी, so in the nephron site for the reabsorption back into the blood, then columnar epithelium कहाँ पे होता है भाई, columnar epithelium, columnar epithelium consists of one single layer of columnar shaped cell, column shaped cell,
तो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग्स ऑफ स्टमक। यहाँ पे लाइनिंग ऑफ स्टमक में टू रिलीज द गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में क्या काम है, टू रिलीज द गैस्ट्रिक जूस, है ना। लाइनिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या काम है, साइट फॉर द एब्सॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। सिलिएटेड इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियम मतलब, सिलिएटेड इपिथेलियम मतलब क्या है, सिलिएटेड मतलब क्या है, देयर इज अ सिलिया लाइन, मतलब जो एपिथेलियल सेल है उसके ऊपर क्या रहेगा, हेयर्स रहेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिएटेड इपिथेलियम। So there is a one layer of columnar epithelial cells and on which there is a cilia, cilia for their, है ना, for their ये मतलब for their free and for their expel, है ना, वहाँ पे cilia रहेगा for the expel of the mucus, ठीक है। जैसे तो ciliated epithelial cells they are found in the linings of trachea, जो आपका विंड पाइप होता है उसमें ciliated epithelial cells है, ciliated epithelial cells। Why? Because this cilia lining or these hairs on the epithelial cell they will expel the mucus or dust from the pharynx। आपके जो विंड पाइप है वहाँ पे अगर कोई म्यूकस है तो म्यूकस ऊपर कैसे आता है ना, जब आपको सर्दी होती है, सब आपको सर्दी होता है तो वहाँ पे जब आपको खांसी होता है, जब आपको बलगम होता है, तो आपको डॉक्टर क्या देते हैं, आपको देते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का रोल क्या होता है, टू रिमूव द म्यूकस। आपका म्यूकस तो विंड पाइप में है, वो आपके नाक से बाहर कैसे आ रहा है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दैट म्यूकस। मूवमेंट कौन कर रहा है भाई, सिलिया। सिलिया क्यों, बिकॉज ट्रकिया हैज अ सिलिएटेड इपिथेलियम, तो डस्ट पैरिंग्स, लाइनिंग्स ऑफ फॉलिपियन ट्यूब, ये सिलिएटेड इपिथेलियम सेल, सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स दे आर आल्सो फाउंड इन द लाइनिंग्स ऑफ योर फॉलिपियन ट्यूब। जो फॉलिपियन ट्यूब है उसमें भी क्या है, सिलिएटेड इपिथेलियल है। तो व्हाट इज द रोल, टू एक्सपेल द ओवम टुवर्ड्स द यूट्रस। यहाँ पे आपका ओवरी जो है वो ओवम रिलीज करेगा, लेकिन ओवरी करेगा कहाँ पे करेगा, फॉलिपियन ट्यूब में। लेकिन फॉलिपियन ट्यूब से ओवम जो है वो एक जो है यूट्रस में आता है। तो फ्रॉम द फॉलिपियन ट्यूब दैट ओवम कम्स एट अ यूट्रस, हाउ, बिकॉज ऑफ द सिलिएटेड इपिथेलियल लाइनिंग, राइट। नाउ ये हो गए सिंपल इपिथेलियम। नाउ सेकंड होता है स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। सेकंड इज नथिंग बट द स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। सो मेनी लेयर, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम मींस मेनी लेयर ऑफ epithelial cells। तो इसमें दो टाइप आता है, फर्स्ट इज स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम एंड सेकंड वन इज द ट्रांजिशनल इपिथेलियम। तो स्क्वैमस में दो टाइप आता है, कैरेक्टनाइज्ड एंड नॉन कैरेक्टनाइज्ड। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम मींस मेनी लेयर ऑफ सेल, तो दे आर फ्लैट ऑन द सरफेस एंड राउंडेड एट द लोअर। ओके, लोअर जो होता है, लोअर मतलब ये क्यूबाइडल हो सकता है या फिर राउंडेड हो सकता है, एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस मैट्रिक्स गोइंग ऑन इन द लोअर लेयर। तो ये फाउंड, सो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल सेल्स, stratified squamous epithelium is found in the epidermis of skin. So on the surface layer particularly it is keratinized, यहाँ पे surface के ऊपर keratinized, so it is a dead cell on the surface with keratin and it is a barrier for pathogen, also found in the linings of esophagus। ये stratified squamous epithelium also found in the linings of esophagus and vagina, है ना। तो surface cells are living, लाइनिंग्स ऑफ इसोफेगस में जो है उसमें सरफेस सेल लाइव होते हैं एंड दे विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर पैथोजन। बट स्किन के ऊपर जो सरफेस सेल है दे आर डेड, तो सरफेस सेल ऑन द स्किन दे आर डेड एंड हैविंग केराटिन, सो दैट्स व्हाई केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। एंड इन द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस एंड वजाना, सो देयर इज अ लाइव सेल, सो देयर इज अ नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो एपिडर्मिस जो है स्किन का, वहाँ पे क्या रहेगा एपिडर्मिस में, तो इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन यहाँ पे केराटिनाइज्ड रहेगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम व्हिच इज केराटिनाइज्ड, ये केराटिनाइज्ड, यहाँ पे मैं के लिखता हूँ। इन द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस इन द वजाइना, so it is a non keratinized, यहाँ पे मुझे इनके लिखता हूँ नॉन keratinized। देन स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड epithelial सेल का दूसरा टाइप होता है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। तो हियर अगेन मेनी लेयर्स ऑफ सेल एंड सरफेस सेल चेंजेस टू द फ्लैट। तो यहाँ पे दीज सेल्स लाइंस द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं, दे आर स्ट्रेचेबल, तो परमिट द एक्सपेंशन विदाउट टेयरिंग एंड लाइनिंग। So these are the different type of epithelial cells. I hope you are understanding. We'll see the next part. Next देखो, एक डिसीज होता है आपका एक सिस्टिक फाइब्रोसिस,
there is one disease known as a cystic fibrosis. There is one disease known as a cystic fibrosis. What is that cystic fibrosis? है ना, cystic fibrosis आपने सुना होगा बहुत जगह पे अपने cystic fibrosis. तो cystic fibrosis is nothing but it is a genetic disorder. ये क्या है? It is a genetic disorder. Cystic fibrosis, a kind of genetic disorder. There are different forms of cystic fibrosis. There are different forms of cystic fibrosis. ये cystic fibrosis बहुत सारी जगह पे होता है. जैसे cystic fibrosis that can occur in the exocrine glands. Exocrine glands में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल salivary gland में हो सकता है, gland में हो सकता है, पैंक्रियाज में हो सकता है, या फिर म्यूकोस ग्लैंड में हो सकता है, म्यूकोस ग्लैंड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो सिस्टिक फाइब्रोसिस मोस्टली रिलेटेड विद द जो डेंजरस सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है. सो मोस्ट सीवियर सिस्टिक फाइब्रोसिस दैट ऑकर्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना. इसमें क्या होता है, जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, म्यूकस, इनका काम है. सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? टू सिक्रेट द सलाइवा. पैंक्रियाज का काम क्या है? टू रिलीज द पैंक्रियाटिक जूस ना, एंजाइम, है ना. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस ग्लैंड है उसका काम क्या है? म्यूकस सिक्रेशन, है ना. तो व्हाट हैपेंस इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस. यहाँ पे थिक म्यूकस बनेगा एंड दैट थिक म्यूकस विल क्लॉग द डक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटिक डक्ट है, वो थिक म्यूकस उसको पैंक्रियाटिक डक्ट को बंद कर देगा. देयर विल बी क्लॉगिंग ऑफ pancreatic duct, and that result in the indigestion and digestive disorders. Prevention of release of pancreatic enzyme, and that will affect the digestion. And most severe जो form होता है cystic fibrosis of lung. Cystic fibrosis of lungs is the most serious. Cystic fibrosis of lung is the most serious, and it is a genetic defect in the genetic. It is a genetically mediated disease. Genetic defect is there. So in the gene there is one gene known as a CFTR. ये जो gene होता है CFTR, इसमें म्यूटेशन होता है. There is a genetic mutation in this gene. यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है. So there is a genetic mutation in the gene known as CFTR which codes the chloride ion channel. मतलब ये CFTR नाम का एक जीन होता है. Gene is nothing but the particular part of DNA. So that will code a particular protein. ये किसके लिए कोड करता है? तो CFTR जीन विल कोड क्लोराइड आयन चैनल, मतलब रिसेप्टर होता है, प्रोटीन रिसेप्टर होता है. ये क्लोराइड आयन चैनल रिसेप्टर आर नथिंग बट द प्रोटीन इन नेचर. So in the cystic fibrosis of lung, what happened? So there is a genetic mutation in the gene called as CFTR, which codes for the ion channel, chloride ion channel in the membrane of epithelial cells. अभी क्या होता है कि cystic fibrosis में there is a defective channel formation because of the genetic mutation. So there is a defective formation of channel in the lungs. Now defective channel बन गया है ना, defective channel बन गया तो that is destroyed in the lungs and leads to changes in the tissue fluid. तो जब destruction होगा उस प्रोटीन का तो वहाँ पे क्या होगा? There is a release of tissue fluid. There is changes in the tissue fluid around the cell. And this inactivate one depensin क्या है? Depensin, there is a one protein. Depensin is there is a natural antibiotic produced in the lungs. Now in absence of depensin, ये depensin क्या करता है? It will prevent the infection of lung. Depensin का काम क्या होता है? It will prevent the infection of lung. Depensin का काम होता है? Depensin नाम का प्रोटीन होता है. You can say it is an antibiotic in the lungs. तो है ना, जो डिपेंसिन को मेटाबोलाइज कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है. कौन इनएक्टिवेट कर देता है? तो देखो लंग्स में क्या होता है कि लंग्स में जो म्यूकस होता है, तो दैट इज सिक्रेटेड. बट इफ देयर इज एनी जेनेटिक म्यूटेशन, आपका जो जीन है, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस, ये जीन है आपका CFTR. इस जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्लोराइड आयन चैनल. ये जो रिसेप्टर है क्लोराइड आयन चैनल, इसको कोड करता है. और सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? इसमें ये जीन में म्यूटेशन होता है, ये जीन में डिफेक्ट आता है, माल फॉर्मेशन होता है, राइट. दैट रिजल्ट इन द माल फॉर्मेशन ऑफ योर क्लोराइड आयन चैनल. वो प्रोटीन गलत बनेगा. और जैसे
प्रोटीन गलत बनता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बॉडी में. इफ देर इज अ फॉल्टी फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन चैनल, क्लोराइड आयन चैनल प्रोटीन, तो दैट इज डिस्ट्रॉयड. एंड जैसे डिस्ट्रॉय होता है तो देर इज अ चेंजेस इन द टिश्यू फ्लूइड. डिस्ट्रॉय होने के बाद में देखो आपको अगर कुछ जख्म होता है स्किन के ऊपर तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है. तो टिश्यू फ्लूइड अराउंड दिस, एंड दैट टिश्यू फ्लूइड विल इनएक्टिवेट द वन प्रोटीन डिफेंसिन. ये आपका नेचुरल एंटीबायोटिक होता है लंग्स में, तो उसको इनएक्टिवेट कर देगा. और ये इनएक्टिवेट हो गया मतलब क्या, इन absence of this defensin, there is a Pseudomonas aeruginosa. तो Pseudomonas aeruginosa जो है वो इन्फेक्शन कैच कर लेता है. तो Pseudomonas infection will be there and that will stimulate the lungs to produce a copious thickness. ये क्या करेगा, copious thickness मतलब thickness का mucus बनेगा. That will produce a very thick mucus which is a favorable condition for this Pseudomonas aeruginosa. And in this thick mucus, बॉडीज डिफेंस सेल, बॉडीज का जो डिफेंस सेल होता है जैसे आपका ल्यूकोसाइट हो गया, जैसे मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट, तो दे कैन नॉट रीच. एंड दैट्स व्हाई ये Pseudomonas aeruginosa वहाँ पे रहता है एंड न्यूमोनाइटिस करता है ना. तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद न्यूमोनिया. न्यूमोनिया क्यों होता है, जैसे आपका ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन, कोरोना वायरस में भी सेम हो रहा था, सेम थिंग वाज हैपनिंग इन द कोरोना वायरस इन्फेक्शन. So in the coronavirus they used to block your lungs and there is development of this mucus layer and which was not able to है ना. जैसे ये निमोनिया हो जाएगा तो lungs will not be efficiently exchange the gases and that's why patient will die. तो यहाँ पे है ना cystic fibrosis causes the clogging of bronchial tubes. cystic fibrosis की वजह से क्या होता है, there is a clogging of bronchial tubes and there is a frequent pneumonial infection and lungs cannot exchange the gases. This disorder जो ये जो disease है, disorder is a progressive, it is a fatal, मतलब मर भी सकता है आदमी. It is a fatal if lungs transplant is not done. तो इसमें लास्ट में लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, राइट. तो दैट इज नोन एज अ सिस्टिक फाइब्रोसिस. ये एक अप्लाइड नॉलेज है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टिश्यू, बट ये टिश्यू में ही होता है इसलिए it is applied disease, right? You have to remember what is cystic fibrosis. Question भी आ चुके हैं. cystic fibrosis is a disease of, mostly it is a disease of your trachea or your respiratory tract. वहाँ पे cystic fibrosis में क्या होता है, म्यूकोस जो है ना वो म्यूकोस बहुत थिक हो जाता है. क्यों थिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिफेक्टिव आयन चैनल प्रोडक्शन होता है. there is a defective in the chloride ion channel production. Why defective? Because there is a mutation in the gene. कौन सा जीन, CFTR जीन. तो उसकी वजह से डिफेक्टिव आयन चैनल मतलब प्रोटीन बना है, वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय किया जाता है लंग्स में. एंड जहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया वहाँ पे जो है ना सराउंडिंग में फ्लूइड बनता है, वो फ्लूइड एक प्रोटीन होता है आपके लंग में दूसरा डिफेंसिन, उसको इनएक्टिवेट करता है. डिफेंसिन क्या है, यू कैन से इट इज अ नेचुरल एंटीबायोटिक बाय लंग्स. डिफेंसिन को न्यूट्रलाइज कर देता है और उसकी वजह से आपका लंग्स का इम्यूनिटी कम हो जाता है और वहाँ पे Pseudomonas aeruginosa का इन्फेक्शन हो जाता है. और वो Pseudomonas aeruginosa वहाँ पे जो थिक म्यूकस है उसमें बस जाता है और इन्फेक्शन बढ़ता है. तो वहाँ पे आपके जो WBCs है, जो आपके एंटीबॉडीज है, वहाँ पे जा नहीं सकते, कैन नॉट रीच. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ क्लॉगिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब एंड देयर इज अ फ्रीक्वेंट निमोनिया एंड दैट मे लीड्स टू डेथ, known as a cystic fibrosis. I hope I am audible to you. You are able to understand. Right? बहुत ही डीप में यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा, ठीक है. तो यू कैन सी ओवर हियर, तो यू कैन सी सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है. सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो जाता है Pseudomonas aeruginosa का. एंड देयर इज अ थिक म्यूकस विच विल ब्लॉक द एयरवे. थिक म्यूकस क्या करता है, एयरवे ब्लॉक करता है. एंड दैट्स व्हाई लंग्स विल नॉट एबल टू एक्सचेंज द गैसेस. दैट्स व्हाई you need a lung transplant in this case, or you need a lung transplant, otherwise you will die. Cystic fibrosis में कुछ changes होते हैं यहाँ पे. You can see there is a clogging of airway. There is a clogging. ये देखो ये normal है, normal airway, normal bronchial है ना airway, and this is a clogging airway of cystic fibrosis, clogging due to thick mucus. थिक म्यूकस, इसमें म्यूकोलाइटिक ड्रग यूज करते हैं, अपन बाद में देखेंगे वो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज अ
first tissue was a epithelial tissue. We have seen first tissue was a epithelial tissue, second is a connective tissue, third one is a muscle tissue, fourth is a nervous tissue. Because there are 4 type टिश्यू के मेजर कितने टाइप है अपन ने देखा है इनिशियली, ये 4 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है आपका मसल टिश्यू, चौथा होता है आपका नर्वस टिश्यू। तो अपन ने एक देखा है, कौन सा देखा है अपन ने, एपिथेलियल टिश्यू देखा है। तो सेकंड इज नथिंग बट द कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्शन करता है, किसमें, दोनों के बीच में कनेक्शन करता है कनेक्टिव टिश्यू। सो इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। मैट्रिक्स विद फाइबर मतलब क्या, इसमें क्या रहेंगे, सम सेल्स विल बी देयर, सेल्स विल बी अटैच्ड टू ईच अदर, जहाँ पे सेल्स होंगे, सेल्स अटैच्ड होंगे ईच अदर को, सेल्स विल बी अटैच्ड टू ईच अदर बाय मैट्रिक्स विद द फाइबर। तो मैट्रिक्स होगा, इसमें जो कनेक्शन होगा उसमें फाइबर्स भी होंगे, क्या होंगे, फाइबर्स। दे कम, फाइबर्स मतलब क्या, दे आर नथिंग बट द प्रोटीन फाइबर, दे कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल नोन एज अ फाइब्रोब्लास्ट। Connective tissue, most abundant tissue in these cells will be together in the matrix having fiber. Okay, it is present in the larger amount as compared to epithelial tissue. Epithelial tissue में क्या है, epithelial tissue में matrix जो होता है, matrix, तो matrix is a very less. In epithelial tissue जो basement membrane होता है, matrix होता है, वो कम होता है ना, बट ये यहाँ पे connective tissue में matrix ज्यादा रहेगी। So there is a higher amount of matrix or ground tissue in the connective tissue. Now presence of fiber in the matrix will give you, है ना, jelly like structure। यहाँ पे क्या है, jelly like structure, तो jelly like structure। कुछ अब स्पेलिंग मिस्टेक है। तो connective tissue, second type is a connective tissue. In the connective tissue you have it is the most abundant tissue. You have different type of cells which are fixed on a matrix with a fiber, right? And because of the fiber it will give you a jelly like texture and dense, it is a dense and rigid tissue। ये बहुत ही तगड़ा डेंस एंड रिजिड होता है, रिजिड टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो है ना, इसके फंक्शंस क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू, फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द, है ना, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, इंसुलेशन ऑफ, है ना, इंसुलेशन ऑफ अंडरलाइन टिश्यू। तो इसका काम क्या होता है कि इट विल provide a binding, will provide a structural support, it will provide protection, it will provide a transport and it will also act as a insulation, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, सेल्स कितने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट द कनेक्टिव टिश्यू, है ना। टिश्यू के 4 टाइप होते हैं बॉस, देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू। फर्स्ट वन इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज नोन एज अ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज नोन एज अ मसल टिश्यू, फोर्थ वन इज नोन एज अ नर्वस टिश्यू, राइट। तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या, यहाँ पे सेल्स होंगे, सेल्स दे आर ज्वाइंड बाय मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स हैविंग फाइबर, राइट। ड्यू टू दैट फाइबर इट विल लुक लाइक अ जेली लाइक टेक्सचर एंड इट इज अ डेंस एंड रिजिड। इसका फंक्शन काम क्या है, इसका फंक्शन बाय बाइंडिंग, मतलब जैसे दो बोन्स है, द टिश्यू बिटवीन 2 बोन्स, आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जैसे आपका टिबिया फिबुला है और आपका टिबिया फिबुला है और आपको फीमर है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, जॉइंट है, देयर इज अ लिगामेंट। सो ligaments they are made from a connective tissue, right? So binding, they will give you structural support, protection, transport and also insulation. Now what type of cells are present in the connective tissues? Connective tissue में कितने टाइप के सेल होते हैं, so there are different type of cell present in the connective tissue। पहले टाइप का सेल होता है देखो फाइब्रोब्लास्ट। So first type of cell present in the connective tissue is known as a fibroblast। So fibroblast means क्या, तो फाइब्रोब्लास्ट एज द नेम इंडिकेट, इसमें देखो नाम में रखा है, आप बोलते हो नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा होता है। जैसे फाइब्रो मतलब क्या है, फाइबर, ब्लास्ट मतलब क्या, इट इज अ
इट इज अ इंडिकेशन फॉर सेल. फाइब्रोब्लास्ट मतलब क्या? फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल. फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल. तो व्हाट they will produce a fiber मतलब क्या? प्रोटीन. so they will produce a collagen and elastin fiber. They will produce a collagen and elastin fiber and they will produce a very fine collagen fiber known as a reticulin, है ना. ये क्या करेंगे? फाइब्रोब्लास्ट फाइबर प्रोड्यूस करेंगे. किसका? कोलेजन. कोलेजन क्या है? प्रोटीन है. इलास्टिन क्या है? प्रोटीन है. कोलेजन इलास्टिन दोनों भी क्या है? बोथ दीज आर ऑफ प्रोटीन टाइप. कोलेस्टिन इलास्टिन, इलास्टिन एंड कोलेजन बोथ आर द फाइबर. फाइबर मतलब क्या? प्रोटीन. फाइब्रोब्लास्ट विल प्रोड्यूस अ प्रोटीन नोन एज कोलेजन एंड इलास्टिन. कोलेजन क्या है? इलास्टिन क्या है? इलास्टिन इज इलास्टिक प्रोटीन. तो फाइब्रोब्लास्ट different type of cell present the connective tissue. First होता है फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट they will produce a collagen protein, they will produce a elastin protein fiber and very fine protein of collagen fiber they are known as a reticulin. तो अगर ज़्यादा ही छोटा थ्रेड है, फाइन थ्रेड है, फाइन प्रोटीन फाइबर है, तो उसको रेटिकुलिन बोलेंगे. व्हाट इज द फंक्शन? तो फंक्शन ऑफ दिस फाइब्रोब्लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इज नथिंग बट टिश्यू रिपेयर एंड वुंड हीलिंग. ये क्वेश्चन आपको जीपैट में या फिर बाकी एग्जाम में आ सकता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इन द कनेक्ट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इन द कनेक्टिव टिश्यू? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इन द कनेक्टिव टिश्यू? So it will repair and it will cause wound healing because fibroblast will produce collagen and elastin fiber. So that will repair the tissue. ठीक है. तो देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इन द कनेक्टिव टिश्यू known as a flat cell. As a flat cell or also known as a fat cell or also known as a adipocyte. तो देखो different type of cell present in the connective tissue. तो connective tissue में कनेक्टिव नाम में क्या है? इसका कनेक्शन करना. तो काम ही होता है कनेक्शन करना. कनेक्शन किसमें करेगा? कनेक्शन किसमें होता है? दो लोगों के बीच में होता है कनेक्शन, है ना. कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है? ये कनेक्ट करेगा किसी न किसी को. जैसे दो बोन को कनेक्ट करने वाला टिश्यू क्या है? लिगामेंट. दैट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, है ना. दो सिस्टम को कनेक्ट करने वाला क्या है? कनेक्टिव टिश्यू. जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट. तो कनेक्शन करने का काम करता है. तो इसमें सेल कौन से होते हैं? पहला होता है फाइब्रोब्लास्ट. उसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स. सेकंड होता है ना, फाइब्रोब्लास्ट का मेन रोल क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ इलास्टिन एंड कोलेजन एंड वुंड हीलिंग और टिश्यू रिपेयर. सेकंड टाइप का सेल होता है कनेक्टिव टिश्यू में. देयर इज सेकंड टाइप ऑफ सेल इन द कनेक्टिव टिश्यू नोन एज अ फ्लैट सेल और नोन एज अ फैट सेल. फैट सेल और फ्लैट सेल और एडिपोसाइट्स. इसको फैट सेल भी बोलेंगे अपन या फिर फ्लैट सेल भी बोलेंगे, फिर बोलेंगे एडिपोसाइट्स. एडिपोसाइट मतलब फैट सेल, लिपिड कंटेनिंग सेल. आपको जो एमआरएफ का टायर बीच में है, कमी में एमआरएफ का टायर बना है, उसमें सब क्या है? एडिपोसाइट्स. इसमें सब क्या है? फैट सेल. फैट सेल और फैट सेल और फ्लैट सेल और फैट सेल और एडिपोसाइट्स. तो इट इज अ अबंडेंट एडिपोज टिश्यू, है ना. ये अबंडेंट एडिपोज टिश्यू होता है. इसका साइज भी वेरी होता है, वेरी इन द शेप एंड साइज. इसका साइज एंड शेप क्या है? वेरी है, वेरिंग ऑफ शेप एंड साइज, राइट. तो एडिपोज टिश्यू, फ्लैट सेल बनाते हैं आपका एडिपोसाइट्स. फ्लैट सेल आल्सो नोन एज एडिपोसाइट्स व्हिच विल मेक अ एडिपोज टिश्यू. तो एडिपोज टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें फ्लैट सेल होता है और फैट सेल होता है या फिर एडिपोसाइट्स. तो ये तीनों सिनोनिम्स है. तो व्हाट दे आर वेरिंग इन द साइज. वेरिंग, है ना, अलग अलग साइज के होते हैं. वेरिंग इन द साइज यहाँ पे. Third type of cell present in the connective tissue known as the macrophages. Third type of cell in the connective tissue known as the macrophages. और macrophages में क्या है? There is a granules in the cytoplasm of macrophages. Cytoplasm मतलब क्या है? सेल, है ना. cytoplasm मतलब क्या है? आपको मालूम है, सेल हो चुका है. cytoplasm मतलब साइटोसोल और साइटोप्लाज्म. So in that they have granules and macrophages they are attached to a connective tissue. Macrophages they are attached to a connective tissue or connective fiber and other are motile, है ना. Most of the macrophages they are attached to a connective tissue, that's why they are non-motile, but few are motile. And उसका काम क्या होता है? डिफेंस फंक्शन. They are engaged in the defense function.
दे विल कॉज फैगोसाइटोसिस ऑफ सेल डेब्रिज। जो भी सेल डेब्री है उसको फैगोसाइटोसिस करेगा, बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडीज, ये विल कॉज फैगोसाइटिस। तो उसके फंक्शन दे आर कंपेरेबल। तो मैक्रोफेजेस का फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू में कंपेरेटिवली, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो इन द ब्लड यू हैव मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर द डिफेंसिव फंक्शन, दे विल गो एंड कैच द बैक्टीरिया, दे विल किल द बैक्टीरिया। जैसे कपर सेल होता है, कपर सेल दे आर फाउंड इन द लीवर। क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, कपर सेल आर फाउंड इन द लीवर। कपर सेल इज आल्सो हैविंग फैगोसाइटोसिस। फाइब्रोब्लास्ट इन द लिम्फ ग्लैंड में फाइब्रोब्लास्ट हो गई, लिम्फ नोड। माइक्रोग्लियल सेल दे आर फाउंड इन द ब्रेन। तो सिमिलर फंक्शन, माइक्रोग्लियल सेल्स in the brain has a similar function to macrophages. Fibroblast in the limb have a similar function to macrophages. Phagocytic cell in the alveoli, they have a similar function to macrophages. And the monocytes in the blood, they have a similar function to macrophages. डिफेंस सिस्टम में काम आता है ये बहुत बेसिकली। मतलब जो भी कनेक्टिव टिश्यू में आपका इन्फेक्शन वगैरह या फिर सेल डेब्रिज है या फिर फॉरेन कुछ आ चुका है, उसको एनग्लब करके डिस्ट्रॉय करने का काम क्या है, मैक्रोफेज का है, राइट। मैक्रोफेज का काम वो है डिफेंस फंक्शन। So I hope I am audible to you clearly and you are able to see the screen. Am I audible you clearly? Am I audible you clearly? If yes, write yes in the comment box. We are discussing these tissues. Tissue अपन discuss कर रहे हैं, tissue for GPAT Niper DI Pharmacist. Yes, yes. Am I audible? Please write yes in the comment box. Tissues. Right? Now, fourth type of cell present in the connective tissue. चौथे टाइप का सेल कौन सा होता है कनेक्टिव टिश्यू में? फोर्थ टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज नोन एज अ ल्यूकोसाइट्स। सो फोर्थ टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू नोन एज अ ल्यूकोसाइट्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ल्यूकोसाइट्स? इसका काम क्या है भाई? तो दे आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? दे आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स आर द टाइप, दे आर नथिंग बट द डब्ल्यूबीसी एंड they are developed from the lymphocytes, B lymphocytes, to form a specific antibodies in the tissue. इसका काम भी क्या है? डिफेंस फंक्शन। तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन करता है दो तीन, जैसे बोन में टू बोन्स, दे आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज और टेंडॉन्स एंड दे आर द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। So in the connective tissue you have fibroblastic cell, fibroblast to produce elastin and collagen, and main role is a repair of tissue. And then flat cell, also known as adipocytes, they will compose a adipose tissue. Macrophages, they have a defense function. Leukocyte, they have a defense function in the connective tissue, right? And also mast cell. Mast cell में क्या है? So last type of cell present in the connective tissue. देखो फाइब्रोब्लास्ट, फ्लैट सेल, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट एंड मास्ट सेल. Mast cell are found in the loose connected tissue. So it is found in the loose connected tissue and under the fibrous capsule of some organs. Organ के नीचे भी होता है जैसे लीवर, स्प्लीन. Cell containing heparin and histamine. देखो मास्ट सेल में क्या होता है? मास्ट सेल हैज अ टू कम. मास्ट सेल विल स्टोर heparin and histamine. Heparin क्या है? Heparin is a anticoagulant. Histamine क्या है? Histamine will produce the inflammation. So mast cell has a heparin and histamine and other inflammatory chemicals. So these are the different type of cells present in the connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट होंगे, फ्लैट सेल होंगे, और फ्लैट सेल को अपन एडिपोसाइट बोलते हैं, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट एंड मास्ट सेल, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स कितने हैं? देखो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. So types of connective tissue has a two type, loose connect. Okay, types of connective tissue. First one is the loose connective tissue or areolar connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू एंड मोस्ट जनरलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. मोस्ट जनरलाइज टाइप कौन सा होता है? ये लूज और एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू. एंड इसमें क्या है? मैट्रिक्स हैविंग फाइब्रोब्लास्ट, मतलब डिफरेंट फाइब्रोब्लास्टिक सेल रहेंगे, सम एडिपोसाइट्स रहेंगे, फ्यू मास्ट सेल्स. सो फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट, मास्ट सेल्स, दे आर present in the matrix and they are separated by elastic and collagen fiber. तो इसमें elastic and collagen fiber रहेंगे, elastin collagen fiber रहेंगे.
मैक्रोफेजेस. Now this type of tissue is found in the almost every part of body. ये टाइप का जो टिश्यू है almost found in the every part of body. And what is function? They provide the elasticity and tensile strength to the tissue. This tissue provides the elasticity and tensile strength, and also connect and support the tissue of under the skin. Connective tissue क्या करेगा? Support करेगा, connect करेगा. Support will support the tissue under the skin between the muscle. So between the muscle connective tissue रहेगा, दो muscle cell को join करेगा. Supporting the blood vessel को support करेगा. Supporting the nerve in the GIT, in the glands, supporting the secretory cells of the gland. Yeah, what is the role of this loose or areolar connective tissue? Loose or areolar connective tissue का रोल क्या होता है? So it will provide a elasticity and tensile strength. It will connect and support the tissues of say under the skin. Skin के अंदर के टिश्यू को कनेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा. Between the muscle, supporting the blood vessel and nerves. In the GIT also connected tissue is there. Gland and supporting the secretory cells. दूसरा टाइप का सेल, दूसरा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है. So there are different type of connective tissue. जैसे फर्स्ट है लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू. जैसे लूज एरियोलार है ना. तो दूसरा एक होता है डेंस कनेक्टिव है ना. दूसरा टाइप है आपका एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू मतलब क्या है? फैट सेल और एडिपोसाइट्स और फैट सेल. So they are having large lipid globules in the matrix of areolar tissue. इसमें क्या है कि एडिपोज टिश्यू में क्या है? एडिपोसाइट्स होंगे जो सेल से they will store the lipids. तो लिपिड ग्लोबुल्स आर प्रेजेंट इन द एडिपोसाइट. लिपिड मतलब ऑयल, आपका जो भी ऑयल है तो वो किस में रहेगा? एडिपोज टिश्यू में रहेगा. आपका जो टमी है, टमी के ऊपर जो आपका वेट बढ़ रहा है वो सब क्या है? एडिपोज टिश्यू. तो they are having large lipid globules in the matrix of areolar tissue. There are two type of adipose tissue. Adipose tissue का दो टाइप होता है. एक होता है white adipose tissue. There are two type of adipose tissue. First में जो white adipose tissue, तो इसका काम क्या है? White adipose tissue will support your kidney, eyes, between the muscles, under the skin, act as a thermal insulator. तो adipose tissue क्या है? It will support the vital organs and it will act as a thermal insulator and it will store the energy store. क्यों? जब आपके पास में ग्लूकोज नहीं होगा तो ये लिपिड ब्रेकडाउन होगा. तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू इज अराउंड 20 to 25% ऑफ योर बॉडी वेट. इन अ हेल्दी एडल्ट, अगर कोई हेल्दी एडल्ट है उसका 20 to 25% बॉडी वेट क्या है? एडिपोज टिश्यू का है. ओके, सो फर्स्ट एडिपोज टिश्यू व्हाइट. ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू, व्हाइट एंड ब्राउन. ब्राउन जो होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज फाउंड इन द न्यूबॉर्न्स. ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज फाउंड इन द न्यूबॉर्न्स. ठीक है. अभी इसमें जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू है, white adipose tissue will give you more energy, and less heat. White adipose tissue will give you more energy. यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रहेगा, more energy and less heat. White adipose tissue will give you more energy and less heat. Brown adipose tissue will give you more energy, less energy and more heat. There are two type of adipose tissue. एडिपोज टिश्यू मतलब उसमें एडिपोसाइट्स होंगे. एडिपोसाइट्स मतलब क्या? फैट सेल. व्हाइट एडिपोज टिश्यू 20 to 25% ऑफ बॉडी वेट. इट विल गिव यू मोर एनर्जी, एनर्जी ज्यादा देगा बट लेस हीट. ओके, बट ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज फाउंड इन द न्यूबॉर्न्स, बच्चों में होता है, एंड दैट विल गिव यू लेस एनर्जी बट इट विल गिव यू मोर हीट. तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन द चिल्ड्रन. एडिपोज टिश्यू. थर्ड होता है लिम्फोइडल टिश्यू. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. तो लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिम्फोइडल टिश्यू. लिम्फोइडल टिश्यू क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेटिकुलर टिश्यू. लिम्फोइडल टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज अ रेटिकुलर टिश्यू. लिम्फोइडल टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज अ रेटिकुलर टिश्यू. They can ask you the questions like this. Lymphoidal tissue is also known as a reticular tissue or
रेटिकुलर टिश्यू। क्यों क्यों बोलते हैं लिम्फोइडल टिश्यू को रेटिकुलर टिश्यू? बिकॉज इसमें रेटिकुलिन फाइबर होता है, रेटिकुलिन फाइबर एंड कंटेन्स आल्सो कंसिडर्ड मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। ये दो मेन सेल होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। तो lymphoid tissue is nothing but the reticular tissue and also has a monocytes and lymphocytes. So these cells has a defense function. Defense function. So this lymphoid tissue is found in the lymphatic system, lymphatic node, and lymphatic organ. So lymphatic organ, lymphatic nodes, lymph nodes, organ of lymphatic system, they are made from a lymphoid tissue. Loose areolar tissue is a type of connective tissue. Adipose tissue is a type of connective tissue, and lymphoidal tissue is also a type of connective tissue. You can see the structure of loose areolar connective tissue. देखो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या है कि जो सेल्स है और उसमें क्या है सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट। कौन सा सेल है? फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल है ना, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये भी क्या है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। देन तो देयर इज अ कोलेजन फाइबर, ये सब जो नेटवर्क दिख रहा है आपको कोलेजन फाइबर का है। एंड देयर इज अ इलास्टिक फाइबर एंड एडिपोसाइट्स। जो एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट मतलब लिपिड सेल, ये जो येलो वाला पार्ट है। तो this is a diagram obtained in the scanning electron microscope. Scanning electron microscope के नीचे कलर डायग्राम आता है loose areolar connective tissue का, right? And adipose tissue, you can say this is known as the adipose tissue. ये क्या है? adipose tissue। तो adipocytes मतलब क्या? fat cell। adipocyte मतलब क्या? fat cell। And okay, so they are having a lipid, they are having a fat, and they vary in the size. So it is a kind of connective tissue. And this is a, ये जो डायग्राम है इट इज अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑप्टेन डायग्राम, कलर डायग्राम है एडिपोज टिश्यू यहाँ पे है ना। सो यस, समर्थ अंदर है। यस, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर फॉर जीपैट नाइपर 25-26 ऑनलाइन बैच। जो ऑनलाइन बैच आने वाला है मेरा चालू है, उसका ये फोर्थ लेक्चर है। और एक दो लेक्चर डेमो लेक्चर होंगे बाद में मेरा, सिर्फ जितने रजिस्टर हो चुके हैं बच्चे उनके लिए होगा। सो दिस वन इज अ फोर्थ लेक्चर नोन एज अ डेमो लेक्चर फॉर जीपैट नाइपर DI फार्मेसी। एंड सबसे मेन चीज़ है कि ये मैं ऐसा जो मैं परफेक्ट हो जिस सब्जेक्ट में, जो मेरा एक्सपर्टाइज है वो का लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। जैसे मैं रैंडमली ले रहा हूँ, जैसे सेल लूँगा, पहले सेल टिश्यू लूँगा, उसके बाद में एंटी कैंसर ड्रग लूँगा। मतलब इट इज़ नॉट अ मैं मतलब सो कॉल्ड है ना जो होता है। बाकी क्लासेस वाले क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट का लेक्चर अच्छा पढ़ा सकते हो या फिर जो बच्चों को समझता है जल्दी वो लेक्चर लेंगे ताकि बच्चे जल्दी आ जाए। मेरा वैसा नहीं है, मैं ये हार्ड वाला टॉपिक ले रहा हूँ। ठीक है, तो डेंस कनेक्टिविटी तो वो पहले था अपना, है ना। तो आपने देखा है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, है ना, लिम्फोइडल टिश्यू। चौथा टाइप है आपका कनेक्टिव टिश्यू का। सो फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज नथिंग बट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फोर्थ टाइप क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू दे आर हैविंग मोर फाइबर एंड लेस सेल। तो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या था? लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर भी था, सेल भी थे। लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? देयर इज अ मोर फाइबर लेस सेल्स देन लूज कनेक्टिव। देयर आर थ्री टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज अ फाइबरस टिश्यू, है ना। सेकंड वन इज नोन एज अ इलास्टिक एंड थर्ड वन इज नोन एज अ फाइब्रोइलास्टिक, है ना। याद रखना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। फर्स्ट वन इज अ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबरस डेंस कनेक्टिव। द फाइबरस टिश्यू में क्या है? दे आर मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड बंडल्स एंड कोलेजन फाइबर्स, टाइटली पैक्ड बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर विद अ लेस मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज अ फाइबरस टिश्यू। तो इसमें क्या है? कौन से सेल रहेंगे? तो इन द फाइबरस टिश्यू यू विल फाइंड द फाइब्रोसाइट्स। इन द फाइबरस टिश्यू यू विल फाइंड द फाइब्रोसाइट्स। एंड फाइब्रोसाइट्स क्या है? फाइब्रोसाइट्स आर नथिंग बट द ओल्ड एंड इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोसाइट्स क्या है? ओल्ड एंड इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट। तो जो ओल्ड है, जो काम के नहीं है फाइब्रोब्लास्ट, वही क्या है? फाइब्रोसाइट्स। टिश्यू फाउंड इन द फॉर्मिंग ऑफ लिगामेंट आउटर कवरिंग ऑफ बोन। तो ये जो फाइब्रस टिश्यू होता है कहाँ पे होता है? तो इट इज फाउंड इन द लिगामेंट्स, टिश्यू फॉर्मिंग द लिगामेंट। लिगामेंट किससे बनता है? फाइब्रस टिश्यू से बनता है। ऑल्सो
fibrous tissue is found on the covering of bones known as a peritoneum. Covering of bones होता है known as a peritoneum, that is outer, and also fibrous tissue is also present in the outer covering of kidney, lymph nodes and brain. तो जो outer covering है किडनी का, ब्रेन का, बोन्स का, जो लिगामेंट है वो क्या है, वो लिगामेंट है वो क्या है, फाइब्रस टिश्यू है, राइट. तो याद रखना है, इन द फाइब्रस टिश्यू you have tightly packed bundles of collagen fiber and lace matrix, and there are a fibroblast. There is a fibroblast which has dead or inactive fibroblast. Now it is known as the fibrocytes, which are inactive fibroblasts. ठीक है, तो ये हुआ है आपका फाइब्रस टिश्यू. इसमें आता है दूसरा इलास्टिक टिश्यू. इसमें आता है दूसरा इलास्टिक टिश्यू. Now elastic tissue means capable of extension and recoil. Capable of extension and recoil. ये स्ट्रेच भी हो सकता है, रिकॉल भी हो सकता है ना, साइज में कम ज़्यादा होता है. सिंपली इट इज़ अ स्ट्रेचेबल. इट हैज़ अ हैविंग इलास्टिक फाइबर. इलास्टिक फाइबर क्या है, इलास्टिन प्रोटीन एंड फाइबर, इलास्टिन प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट. नाउ so it is forming the large blood vessel. लार्ज ब्लड वेसल जो है इसको फॉर्म करता है. लार्ज ब्लड वेसल कौन सा, जैसे आपका है ना, आपका आर्टरी है ना. लार्ज ब्लड वेसल मतलब आवर्टा, आर्टरी. तो इलास्टिक टिश्यू इज फॉर्मिंग द लार्ज ब्लड वेसल्स. ओके, इलास्टिक टिश्यू इज फॉर्मिंग द लार्ज ब्लड वेसल्स. लार्ज ब्लड वेसल कौन सा है, आवर्टा होता है आपका, आर्टरीज होता है. It will form a large blood vessels. Okay. Then also elastic tissue is found in the trachea. Also elastic tissue is found in the bronchi, lungs. Where stretching is required. जैसे आपका स्ट्रेचिंग कहाँ पे लगता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में होगा इलास्टिक टिश्यू. तो इलास्टिक टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें दो टाइप आता है, फाइब्रस टिश्यू, दूसरा है इलास्टिक टिश्यू. I'll show you this. Forming from a large blood vessel. You can see over here the lymphoidal tissue, structure of lymphoidal tissue and structure of dense connective tissue. यहाँ पे ये lymphoidal tissue है. तो lymphoidal tissue और lymphoidal tissue, lymphoidal tissue it is a type of connective tissue. तो उसमें रेटिकुलर सेल रहेंगे, रेटिकुलर सेल. देन इसमें व्हाइट ब्लड सेल भी रहेंगे, इसमें रेटिकुलिन फाइबर्स भी रहेंगे एंड लिम्फ स्पेसेस रहेंगे. तो इट इज नोन एज द lymphoidal tissue, and this tissue is found in the lymph node, then lymphatic organs like spleen and thymus. lymphatic organs होते हैं spleen, thymus, lymph node जो होते हैं इसमें ये lymphatic tissue पाया जाता है. now dense connective tissue, dense connective tissue और dense connective tissue में ना fibrous tissue आता है और elastic tissue आता है. तो fibrous tissue में देखो यहाँ पे, तो fibrous tissue में क्या है, कोलेजन फाइबर रहेंगे एंड फाइब्रोसाइट मतलब डेड फाइब्रोब्लास्ट सेल रहेंगे. तो इट इज द मोस्ट टफ टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू. एंड दूसरा होता है इलास्टिक टिश्यू, तो विच इज अ स्ट्रेचेबल. इसमें इलास्टिक फाइबर रहेगा, इलास्टिक फाइबर है स्ट्रेचेबल. नाउ नेक्स्ट होता है कार्टिलेज. फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू इज नथिंग बट कार्टिलेज. फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ना. पहले अपन देखा है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोइडल टिश्यू देखा है अपन ने, है ना, एडिपोसाइट्स देखा है अपन ने, है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखा है अपन ने. चौथा टाइप है आपका कार्टिलेज. इन द कार्टिलेज यू हैव हाइलाइन कार्टिलेज, इन द फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक का फाइब्रो कार्टिलेज, बोन होता है. ठीक है, ये अपन कल देखेंगे. तो रिमेनिंग पार्ट विल सी टुमारो, ये अपन कल देखेंगे पार्ट. You can all okay. So in the GPAT Niper 25-26 online batch, what you are going to get? You are going to get a live lectures. You are going to get a daily live lectures. In the GPAT 2025-26 online batch, you are going to get a live daily lectures. Same lecture will be available as a recorded form
and previous year's recorded lectures will also be available. All lectures will be subject wise, chapter wise. Okay, then in the hard copy you are going to get study material. Study material में आपको fundamentals of GPAT Niper DI Pharmacist and GPAT group book you will get. Okay, at your doorstep. Online test series will also be available. So everything is there में only 5,000. Okay, सिर्फ 5,000 में, क्या नहीं believe, only 5,000. Okay, GPAT Niper DI Pharmacist 25-26 batch, live lecture, recorded lecture, study material, test series, everything is now 5,000. So again I am going to take two. Okay, I am going to take anti-cancer drugs and their chemistry, and after that lectures will be available only for our paid students. Okay? So if you want to join, you can join in a bulk, join in a cluster, and join with your friends also. Okay, you are going to get guidance, you are going to get coaching from 7 times GPAT qualified sir. So myself Sachin Jadhav, I have qualified 7 times in the GPAT Niper, also Esic pharmacist, also NHRM, DHS, DMER pharmacist exam also. So you are going to get a good experience with me, and I am going to teach you in a easy language. आपको हिंदी में बोलूँगा, आपको इंग्लिश में बोलूँगा, आपको मराठी में भी बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं. Okay, and all lectures will be chapter wise and subject wise for 2 years, valid for 2 years. तो आप ये सोचो 2 साल के लिए मैं आपको पढ़ रहा हूँ, एंड उसमें स्टडी मटेरियल भी दे रहा हूँ, उसमें लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, सब कुछ है, सिर्फ 5,000 रुपये में. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन. अगर आपको पसंद आया होगा तो यस लाइक कीजिए. प्लीज राइट यस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू लाइक दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच.